انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے ٹکڑے ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ سابق بھارتی کرکٹر اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے جگری دوست نوجوت سنگھ سدھو نے خالصتان بنانے کے لیے سکھوں کی تنظیموں کا چارج سنبھالنے کا اعلان کر دیا۔ پورا دہلی کانپ اٹھا، مودی کے بھارت کو شدید جھٹکا۔ بھارتی پنجاب مودی سرکار سے علیحدہ ہونے کے لیے مکمل تیار۔ راہ نے مودی کو بڑی خفیہ خبر دے دی۔ ترکی کا کشمیر کے بعد اب خالصتان بنانے کے لیے کمر کس لی۔ طیب اردگان کا سکھ لیڈروں کو شوریت دینے کا فیصلہ۔ دوسرا، مودی نے سکھوں کی نسل کشی کا پلان مرتب کر لیا۔ بھارتی حکومت نے سکھ فار جسٹس 40 ویب سائٹ پر پابندیاں لگا دیں۔ سکھ فار جسٹس کے صدر گرپروٹ سنگھ پنو کا دہلی کو خالصتان کے ساتھ بھی ملانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، بھارت کو تاریخ کا بدترین جھٹکا لگ گیا۔ سابق بھارتی کرکٹر نوجوت سنگھ سدھو جسٹس فار سکھ جوائن کر لی اور سکھ لبریشن فرنٹ آرمی میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہریانہ میں اکال تخت سدھو نے سنبھال لیا۔ سدھو نے کہا ہے کہ پاک بھارت اور پاکستان ہمارا خالصتان بنانے کے لیے ساتھ دے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وقت آن پہنچا ہے کہ سکھ قوم کو بھارتی جبر سے علیحدگی ملے۔ مقبوضہ کشمیر کو زبردستی اپنا حصہ بنانے والا بھارت خالصتان تحریک کی وجہ سے اپنی نیندیں حرام کر بیٹھا ہے۔ بھارت میں سکھ برادری کی خالصتان تحریک دن بدن زور پکڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوت سنگھ سدھو نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان سمیت ہر اس ملک کی ضرورت ہے جو بھارت سے نفرت کرتا ہے۔ اس حوالے سے قومی اخبار میں شائع رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خالصتان تحریک چلانے والے سکھوں نے خالصتان کا پاسپورٹ اور خالصتان کی کرنسی کا ڈیزائن بھی سامنے لا کر بھارتی حکمرانوں خفیہ ایجنسیوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ بھارت میں 80% سکھوں نے اپنے فیس بک اکاؤنٹس، دکانوں، دفاتر اور گھروں میں باقاعدہ خالصتان کے پاسپورٹ کرنسی کی تصاویر لگا لی ہیں۔ اس کے علاوہ باوثوق ذرائع کے مطابق پاسپورٹ کرنسی کی تصاویر سامنے آنے کے بعد ایجنسیوں کی رپورٹ پر بھارتی پنجاب میں خفیہ اداروں، فوج، پولیس اور دیگر اہم سرکاری اداروں میں اہم عہدوں پر تعینات سکھ افسران کے تبادلوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اور انہیں ان اضلاع میں بھیجا جا رہا ہے جہاں سکھوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور ان پر باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جانے کا کہا گیا ہے۔ ایسی تمام فوجی بیرکوں کے باہر جن علاقوں پر سکھ تعینات تھے وہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ان سکھ رہنماؤں اور لیڈرز کی مانیٹرنگ شروع کر دی گئی ہے جن کی عزیز ماضی میں خالصتان تحریک کے رہنما رہے ہیں۔ ذرائع نے بھی تصدیق کی ہے کہ پنجاب کی بڑی یونیورسٹی، سرکاری پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مودی سرکار کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کے اداروں میں سکھ طلبہ نے خالصتان تحریک یا کشمیریوں کے لیے کوئی آواز اٹھائی یا جلوس نکالا تو آپ کے خلاف بھی کارروائی ہوگی اور ایسے طلبہ کو بھی تعلیمی اداروں سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اس حکم نامے کے بعد اب تک بھارتی پنجاب کی 2 بڑی یونیورسٹیوں میں 112 سکھ طلبہ طالبات کو نکالا جا چکا ہے، جبکہ 2 تعلیمی اداروں کے سکھ ذمہ داران نے احکامات ماننے سے انکار کرتے ہوئے خود استعفیٰ دے دیا ہے۔ خالصتان کے پاسپورٹ کرنسی سامنے آنے کے بعد پنجاب میں ہندو جنونی افسران کو بھی تعینات کیا جا رہا ہے اور ان کو اس تحریک کو دبانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ ورلڈ سکھ پارلیمنٹ نے بھارتی فوج میں شامل سکھ افسران اور جوانوں کو پاکستان کے خلاف جنگ کے احکامات ماننے سے انکار کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سکھوں کی عالمی تنظیم ورلڈ سکھ پارلیمنٹ کے سربراہ
रजीत सिंह ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर को लिखे गए खत में मोदी सरकार की नफरत अंगेज मोतसिबाना पॉलिसियों को न सिर्फ भारत बल्कि खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। खत में रजीत सिंह का पाक भारत कशीदगी की वजह भारत यूनियन को करार देते हुए कहा है कि जंग की मौजूदा सूरत हाल में हिंदू इतिहाद पसंदों का हाथ है, इसलिए सिख सिपाही पाकिस्तान पर हमले के भारतीय फौज का हुक्म मानने से इनकार कर दें और किसी ऐसे खेल का हिस्सा ना बने जिसमें इलेक्शन के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा हो। इसके अलावा वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के सरबराह ने कहा है कि पुलवामा हमले के बाद मसला कश्मीर पर इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिंदू जज्बात को भड़काया जा रहा है और हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छुट्टी दी जा रही है। सेकुलर भारत को सिर्फ हिंदुओं का मुल्क बनाया जा रहा है। सिख वर्ल्ड पार्लियामेंट के सरबराह का मजीद कहना था कि पुलवामा हमले के बाद भारत में इंतहा पसंदों के मनफी इक़दामात से भारत का अक़लियतों के खिलाफ मकरूज चेहरा बेनकाब हो गया है। भारत जहां अक़लियत महफूज नहीं रही, अब सेकुलर मुल्क कहलाने के लायक नहीं रहा। नॉर्थ अमेरिका में सिखों की नुमाइंदा जमात सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारतीय हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे दिया। न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मोदी हुकूमत का यह फैसला उनकी नाकामी और झुंझलाहट का मुंह बोलता सबूत है। भारत एक तरफ चीन से मुंह मार खा रहा है, दूसरी तरफ सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कल से शुरू होने वाले दिल्ली रेफरेंडम से खौफजदा है। मोदी सरकार को समझना चाहिए कि दहशतगर्द वो होता है जो बम धमाकों के जरिए इंसानों का नाहक खून बहाए। हमारी पुरअमन जिद्दोजहद खालिस्तान बनाने के लिए है। हम हर सूरत पंजाब को खालिस्तान बनाकर दम लेंगे। दहशतगर्द तो खुद नरेंद्र मोदी और उनकी जमात RSS है जो नाहक कश्मीरियों और सिखों का कत्लेआम कर रही है। मोदी हुकूमत को समझ आ गई है कि चीन से पिसपाई के बाद उसका 56 इंच का सीना सुकड़ कर 42 इंच का रह गया है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर खालिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान, चीन और तुर्की से सफारती और इखलाकी मदद की अपील कर दी है, जबकि दुनिया को रोड मैप देते हुए कहा है कि खालिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने के बाद सिख हुकूमत अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएगी। पाकिस्तान की सरजमीन जहां पर हमारा मक्का और मदीना है, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए सिख फौज हरावल दस्ता साबित होगी। आज भारत में नागालैंड, आसाम और छत्तीसगढ़ समेत 33 रियासतों में अलहदगी की तहरीकें जोर शोर से सरगर्म हैं। अगर पाकिस्तान और चीन उनकी मदद करें तो भारत चंद महीनों में ही सोवियत यूनियन की तरह टुकड़े टुकड़े हो सकता है। नरेंद्र मोदी मुस्तकबिल में गोरबाचूफ साबित होंगे। पूरे भारत, पंजाब और हरियाणा में ये तहरीक फैल चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इन दोनों रियासतों के शहर रोहतक, हिसार, करनाल, सरसा समेत कई शहरों और कस्बों में देहात तक जगह जगह कंप्यूटराइज पोस्टरों की भरमार है, जिन पर खालिस्तान जिंदाबाद के लेके नारे रहेंगे, खालिस्तान बट के रहेगा हिंदुस्तान के नारे दर्ज हैं। ऐसे पोस्टर्स बाज मजहबी मकामात, दरगाह, टेम्पल, गुरुद्वारा राम तीर्थ, गुरुद्वारा रामबाग, गुरुद्वारा सिंह सभा के बाहर भी चस्पा किए गए हैं। पुलिस जिन्हें उतारती है मगर फिर लगाए दिए जाते हैं, जिससे बौखलाकर मोदी सरकार सिखों को दहशतगर्द करार देकर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर चुकी है, जिसके नतीजे में तहरीक को ज्यादा तकवीत मिल रही है। आज़ाद खालिस्तान के लिए आलमी रेफरेंडम की तारीख नज़दीक आने पर खालिस्तान तहरीक में जोशो खरोश ज़्यादा बढ़ गया है और 2-3 साल कबल जब सिख फॉर जस्टिस नामी तंजीम ने भारत से अलहदा और खालिस्तान बनाने के लिए 2020 में आलमी रेफरेंडम कराने का ऐलान किया था, तो उसे भारत में बिलखसूस भारतीय मीडिया में मजाक समझा गया था। लेकिन अब खुद भारतीय मीडिया इसकी हकीकत बनने का एतराफ़ कर रहा है। नवंबर 2020 में होने वाले रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस ने वाशिंगटन में हेडक्वार्टर कायम कर दिया है, जबकि 20 से ज़ायद ममालिक में पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इस वक्त मोदी सरकार के ऐवानों में सरासमैगी फैल गई है, जब भारत में सिखों की बड़ी तंजीम अकाल तख्त के सबसे बड़े जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का यह बयान सामने आया कि तमाम दुनिया के सिख खालिस्तान का क़याम चाहते हैं। इंदिरा गांधी के दौर में होने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए अमृतसर में सिखों से सबसे बड़े मजहबी मकाम अकाल तख्त या गोल्डन टेम्पल पर फौजकशी करके बड़ी तादाद में सिखों को हलाक कर दिया गया था, और फिर इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद दिल्ली और दीगर शहरों में सिखों को बेदर्दी से सड़कों, गलियों, बाजारों और घरों में घुसकर इंतहा पसंद हिंदुओं ने हज़ारों की तादाद में
कत्ल कर दिया था। इस वाक़ये के 36 साल पूरा होने पर एक भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि पूरी दुनिया के सिख अपने अलग वतन के ख्वाहिशमंद हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्हें यह पेशकश करती है तो वह खुशी से कबूल करेंगे। अगर नौजवान खालिस्तान का नारा लगाते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। दरे असना श्रीमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदर गोबंद सिंह लंगवाल ने भी खालिस्तान की हमायत कर दी है। दो बड़ी सिख तंजीमों के अहम सरबराहों की जानिब से हमायत पर भारतीय हुक्मरानों की रात की नींदें उड़ा दी हैं। पंजाब और हरियाणा में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। चंडीगढ़ ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में सिख जवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अकाल तख्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौक़िफ़ की जंगजू तंजीम दल खालसा के सरबराह गजिंदर सिंह भी तायद कर रहे हैं, जबकि टेलीग्राफ ऑफ इंडिया ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया है कि गजिंदर सिंह ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। इसके अलावा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि वो सिख लीडरों को पनाह देंगे और अब बढ़ के रहेगा हिंदुस्तान। कश्मीर के साथ साथ खालिस्तान की आज़ादी के लिए तुर्की हर मुमकिन कोशिश करेगा। उनका कहना था कि तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर उस तंजीम का साथ देगा जिसमें खालिस्तान बनने की तहरीक जोर पकड़ गई हो। इसके अलावा तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अब भारत के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है। भारत में 70 सालों से मकबूजा कश्मीर और खालिस्तान जैसे इलाकों में जो जुल्म बर्बरियत की दास्तानें रकम की जा रही हैं, अब उसके इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है और जल्द कश्मीर समेत खालिस्तान और हर वो इलाका पर भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।